Hello everyone, welcome to Bivkuf IS. Let's head on towards our lecture number 2, part 2, I think. Sorry, lecture 3, part 2. That is on protected areas and their conservation and its conservation. So, till now, so far, we have done till 2010 question. We'll look forward to 2011 question. Let's see the question. In India, India is a party to Ramsar Convention and has declared many areas as Ramsar sites. Which of the following statements best describes as how we should maintain these sites in the context of this convention? So first of all we have to understand what is Ramsar Convention. तो हमको रामसार कन्वेंशन में दो चीज़ें अलग करनी है. एक तो कन्वेंशन का मतलब फॉर एग्जांपल ट्रीटीज, समथिंग लाइक अ ट्रीटी, और रामसार came from it's a city. Ramsar is the name of a place and I think it is in Iran. Okay, तो रामसार में एक ट्रीटी हुई. Got it? तो that from there the name came रामसार कन्वेंशन. एंड वो किस चीज के ऊपर हुई थी? वो वेटलैंड्स के ऊपर हुई थी. वेटलैंड्स के ऊपर क्या कि उनका कंजर्वेशन करेंगे और उनका सस्टेनेबल यूज करेंगे. अब उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि वेटलैंड्स का डेफिनेशन क्या है. तो अकॉर्डिंग टू द रामसार कन्वेंशन वेटलैंड्स का डेफिनेशन सिंपली उन लोगों ने ये बोला कि कोई भी लैंड मास के ऊपर जो वाटर रिजर्वोयर बने हुए हैं या फिर वेट लैंड है, लैंड के ऊपर वेटनेस है, बी इट अ ह्यूमन मेड और बी इट अ नेचुरल थिंग, बी इट अ नेचुरल बॉडी, वो सब काउंट हो जाएंगी वेटलैंड में. बट रामसार कंजर्वेशन के अंदर कौन सा वेटलैंड होगा जिसे वो लोग आइडेंटिफाई करेंगे? वेटलैंड्स क्या होते हैं उसका डेफिनेशन उन्होंने वो बताया. गॉट इट? तो ये दो चीजें बहुत बेसिक थी, बहुत जरूरी थी जानना. इसके बाद थिंग्स विल बी मच इजी. सो लेट्स रीड व्हाट इज रामसार कन्वेंशन as per the details given over here. The first statement is the international treaty for the conservation and sustainable use of wetlands is known as Ramsar Convention on Wetlands. Got it? The second point, the conservation derived its name from the Iranian city Ramsey, where it was signed in year 1971. Okay, Ramsar or Ramsey, wo the name of the place. The mission, as slated by the convention, is the conservation and wise use of all wetlands. ठीक है? Through local and नेशनल एक्शंस एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन. ठीक है, लोकल कॉपरेशन लेंगे, इंटरनेशनल लेंगे, नेशनल लेंगे, तीनों लेवल पे लेंगे. ठीक है, और वेटलैंड्स को कंजर्व करेंगे एज अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड. Another point, as per the convention, the wetlands include, see, this is the definition, all lakes and rivers, underground aquifers, swamps, marshes, was grasslands, peatlands, oases, estuaries, deltas, tidal flats, mangroves and other coastal areas, coral reefs, all human-made sites. Again, all human-made, such as fish ponds, rice paddies, reservoirs, salt pans. Wetland provide various benefits, ecosystem services ranging from freshwater supply, food, building materials, आपका biodiversity control, flood control, groundwater recharge, climate change mitigation. The convention works on the wise up philosophy. The convention defines wise use of wetlands as the maintenance of the ecological character achieved through the implementation of ecosystem approaches within the context of sustainable development. Done. अब चलो इसका वो देखो. वाइज यूज, ये रहा. वाइज यूज फिलोसफी पे काम करता है ये. ठीक है, वाइज यूज फिलोसफी से वाइज यूज करना है वेटलैंड्स का. ठीक है, मेंटेनेंस करना है. ठीक है, इकोसिस्टम अप्रोचेस लगानी है इसमें. ठीक है, अप्रोच पे वर्क करेगा. याद रखना ये एम इसी तरीके से इसका वो है, ऑब्जेक्टिव या एम जो भी बोल रहे हो, या इसका फिलोसफी है, इसका प्रिंसिपल यही है. तो वो आई थिंक इस क्वेश्चन में ये डायरेक्टली यही पूछ रहा है.
declared many areas as Ramsar site. Which of the following statement best describes and how we should maintain these sites in the context of the convention? तो ये वाइज यूज वाला ही आ जाएगा ना इसमें, कि हमें इकोसिस्टम अप्रोच लगानी और वाइज यूज रखना है, सिंपल, या वाइज यूज रखना है इकोसिस्टम अप्रोच लगाते हुए। तो देखते हैं ए ऑप्शन, कीप ऑल द साइट्स कंप्लीटली इनएसेसिबल टू मैन दैट विल नॉट बी एक्सप्लॉइटेड। सी, ये तो बहुत ही ओवर एग्जैचुरेटेड नेगेटिव पॉइंट है, हटा दो। नहीं भी आता तो भी कर लोगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जानना ही हो, बट स्टिल नॉलेज लेके चलेंगे। कंजर्व ऑल द साइट्स थ्रू इकोसिस्टम अप्रोच एंड परमिट टूरिज्म एंड रिक्रिएशन ओनली आ गया, देखो इकोसिस्टम अप्रोच तो इन्होंने डाल दिया, बट यहाँ पे आगे ओनली भी लगा दिया, तो ओनली तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी ना कि बस टूरिज्म प्रमोट कर दो, रिक्रिएशन ओनली कर दो, ये क्या मतलब बन रहा है? तो हटाओ इसे, बी भी गया। सी पॉइंट, कंजर्व ऑल द साइट्स थ्रू इकोसिस्टम अप्रोच, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फॉर अ पीरियड विदाउट एनी एक्सप्लाइटेशन with specific criteria and specific period for each time and then allow sustainable use of them by future generations। अच्छा, पहले एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेंगे बट फ्यूचर जनरेशन को सस्टेनेबल यूज करते हुए एक्सप्लॉइट करने का मौका दे देंगे, उनको दे देंगे, अलाउ कर देंगे। ये क्या तरीका है? दोनों के लिए सेम होना चाहिए था क्राइटेरिया, कि दोनों, कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं करेगा और दोनों सस्टेनेबल यूज करें, यही था। तो ये भी नहीं होगा, कंडीशन डाल दी ना। डी ऑप्शन देखो, कंजर्व ऑल द साइट्स थ्रू इकोसिस्टम अप्रोच एंड अलाउ देयर साइमल्टेनियस सस्टेनेबल यूज, आ गया, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। हम सस्टेनेबल यूज करेंगे, इकोसिस्टम अप्रोच लगाएंगे, दोनों को ज्वाइन कर दो, इकोसिस्टम अप्रोच प्लस सस्टेनेबिलिटी, यही है अप अप्रोच वाला जो यहाँ हम कर रहे थे। वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स इज इक्वल टू इकोसिस्टम अप्रोच प्लस सस्टेनेबल यूज, ठीक है, याद रखना, बस इतना ही याद रखना है। डी इज द आंसर। आई होप यू गाइज आर गेटिंग इट। अनदर क्वेश्चन, which of the following is not a site for in situ method of conservation of flora? in situ का मतलब on that site only, उसी जगह पर कंजर्वेशन नहीं हो सकता। वो ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा है इनमें से, ऐसी कौन सी साइट है जो इन situ नहीं है, मतलब कि वहीं पे कंजर्वेशन नहीं कर पा रहे, आपको ले जाना पड़ रहा है कहीं और फ्लोरा को, ठीक है, फ्लोरा एंड फौना। तो इनमें से देखो, बायोस्फीयर रिजर्व तो इन situ होता है, वहीं के वहीं हो जाता है, जंगल का जंगल। बोटेनिकल गार्डन, जो दिल्ली में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, वहाँ पे बोटेनिकल गार्डन करके एक जगह का नेम भी है। अच्छा, लेट्स बी सीरियस। तो बोटेनिकल गार्डन क्या है, अर्बन एरियाज के अंदर पाए जाते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, जहाँ पे एक स्पेसिफिक लोकेशन बना दी जाती है जहाँ पर कंजर्व किया जाता है स्पीशीज को, उनको उनके रियल वातावरण में नहीं रखा जाता, उन वैसा वातावरण बनाया जाता है, इन्वायरमेंट, ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट में नहीं है। तो यहाँ पर तीन चीजें हैं, बायोस्फीयर रिजर्व नेचुरल इन्वायरमेंट, नेशनल पार्क नेचुरल इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन नेचुरल इन्वायरमेंट। एक्स सीटू कौन सा है? तीन इन सीटू है, एक एक्स सीटू, एक्स सीटू इसका जस्ट अपोजिट है इन सीटू का। वो पूछ रहा है एक्स सीटू कौन सा है, उसका कहने का मतलब ये इन सीटू कौन सा नहीं है, या फिर एक्स सीटू कौन सा है। एक्स सीटू मतलब बाहर कहीं पे रखा हुआ है, ठीक है, एक्स है वो बाहर है, ठीक है, ऐसा याद रखना। बी इज द आंसर, बोटेनिकल गार्डन। बाकी सब इन सीटू है, क्वेश्चन इन सीटू वर्सेस एक्स सीटू पे था। गॉट इट? ये अप्रोच लगानी है, देख लो, इन सीटू का कंजर्वेशन मींस द कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम्स and natural habitats and the maintenance and recovery of viable populations of species in their natural surrounding, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन इज नॉट एन इन सीटू कंजर्वेशन, इट इज एक्स सीटू, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल सराउंडिंग में नहीं रखा जाता, वहाँ पे तो एक्स सीटू करा जाता है, मतलब वहीं का एनवायरनमेंट बनाया जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंटेड कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर पर्पस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, कंजर्वेशन, डिस्प्ले एंड एजुकेशन। इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस जो होल्ड करते हैं बोटेनिकल गार्डन्स। गॉट इट? अनदर क्वेश्चन, 2012, with reference to the wetlands of India, consider following। अब देखो ये wetlands में पूछ रहा है। The country's total geological area under the category of wetland is recorded more in Gujarat as compared to other states। सही बात है, सबसे बड़ा वेटलैंड रन ऑफ कच्छ, उससे बड़ा तो कोई वेटलैंड ही नहीं है इंडिया के अंदर, सबसे बड़ा है वो, तो ये बात तो सही है। अदर स्टेट्स के मुकाबले
गुजरात के अंदर वेटलैंड सबसे बड़ा है। ये सिंपल है, सबको पता है ये चीज, बच्चा बच्चा जानता है कि वहां पे रन ऑफ कच्छ है। ठीक है। अनदर, in India the total geographical area of a coastal wetland is larger than that of inland wetland। भाई रन ऑफ कच्छ किसका एग्जाम्पल है, बताओ। कोस्टल वेटलैंड का ही तो है। ठीक है। उसके बाद में रन ऑफ कच्छ के बाद में बंगाल का आ जाता है सुंदरबन, वो मैनग्रोव वाला पूरा एरिया, वो भी वेटलैंड है, तो वो भी कोस्टल वेटलैंड ही है। वो भी तो बे ऑफ बंगाल के कोस्ट पर है, तो वो भी कोस्टल वेटलैंड है। तो अब बता दो इंटरनल वेटलैंड ऐसा कौन सा है जो बहुत बड़ा हो। एक है हमारे पास में केला देव नेशनल पार्क या बर्ड सेंचुरी, वो वेटलैंड में आती है, बट घाना केला देव भरतपुर में राजस्थान में, और वो काफी छोटा है इनके मुकाबले, डॉट के बराबर है मैप में। ये तो पूरे स्टेट खा रहे हैं, इतना इतना बड़े हैं ये। ठीक है, तो कोस्टल हमेशा ज्यादा होगा इनलैंड से, याद रखना। आंसर विल बी सी, बोथ 1 and 2। बेसिक करके सोचो, तुम्हें अगर मैप्स में लोकेशंस याद हैं तो बड़े आराम से कर लोगे। ठीक है, नहीं तो नेम से याद हो, रन ऑफ कच्छ, सुंदरबन, ये तो कोस्टल एरियाज में है। पढ़ लो, वेटलैंड्स कवर 3% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल लैंड ऑफ 3% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है, 3% एरिया ले रहा है। गुजरात अकेला ही 3 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ वेटलैंड ले जा रहा है आउट ऑफ इंडिया टोटल 10 मिलियन में से। ठीक है, 7 मिलियन अभी भी उधर है। Gujarat has the largest area under the wetland, followed by West Bengal. Got it? India has total 27,403 wetlands, of which 23,444 are inland wetlands. Internal wetlands are 23,000 and 3,959 are coastal wetlands. But the coastal wetlands occupy estimate 6,750 square kilometer, which is more than the inland wetlands. ठीक है, coastal wetlands बहुत बड़े हैं और ये inland वाले छोटे छोटे हैं, डॉट्स के बराबर। यही फर्क है बस। ठीक, another question, in which of the following categories of protected areas in India are local people not allowed to collect and use the biomass। बताओ कौन सा एरिया है जहां पर बायोमास कलेक्ट करना अलाउड नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व 3 जोन होते हैं अलग अलग, नेशनल पार्क में अलाउ हो सकता है। वेटलैंड्स डिक्लेयर अंडर, अच्छा देखो, रामसार कन्वेंशन के तहत जो भी वेटलैंड्स डिक्लेयर किए जाएंगे वो प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड होते हैं। कोई भी चीज कहीं से डिक्लेयर हो रही है ना प्रॉपर वे में, तो वो प्रोटेक्टेड होगी काफी ज्यादा, याद रखना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफी बड़ा, बायोस्फीयर रिजर्व तो और भी बड़ा, उसके अंदर कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कई सारे नेशनल पार्क्स आ जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी अलाउड है थोड़ा बहुत, नेशनल पार्क्स में नहीं है, याद रखना ये चीज। ठीक है, पढ़ लो, नेशनल पार्क्स अलाउ नो ह्यूमन इंटरफेरेंस इन एनी फॉर्म ऑफ हार्वेस्टिंग टिम्बर, कलेक्टिंग माइनस फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड प्राइवेट ओनरशिप राइट्स इज नॉट अलाउड है ये। ठीक है, we'll do it above, the questions are coming on these, we'll do it over there। आंसर इज बी, नेशनल पार्क। सम सॉर्ट ऑफ माइट बी अलाउड, नेशनल पार्क में अलाउ करते नहीं है वैसे, we'll see to it। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, डाम्पा टाइगर रिजर्व, गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सारामती पीक। I think we have done all these three. Three of these we have, like most probably we have done two, and one of them was Saramati Peak। Saramati Peak is one of the highest peaks in Nagaland, ऐसा कुछ हमने करा था I think। See, सरामती पीक इज द हाईएस्ट पीक इन नागालैंड, तो इसको बस याद रखो, सरामती पीक है जो नागालैंड में सबसे हाईएस्ट है। वहाँ के रेसिडेंट्स के लिए प्राइड का प्लेस ऑफ प्राइड है। नागालैंड म्यांमार बॉर्डर पे मिलती है ये पीक। ठीक है, थानामीर क्या बोलते हैं, किपेरे डिस्ट्रिक्ट नागालैंड, थानामीर विलेज किपेरे डिस्ट्रिक्ट नागालैंड के पास में। नहीं नहीं, थानामीर पीक इज थानामीर, अच्छा बेस ऑफ द पीक इज थानामीर। थानामीर बेस है, पुनग्रो विलेज का नेम है, एंड किफिरी डिस्ट्रिक्ट में आता है नागालैंड की ये जगह। सारामती याद रखो बस, और म्यांमार बॉर्डर पर, और पुंगरो विलेज है, और थानामीर उसका बेस है। थोड़ा थोड़ा याद करो, फिर डिस्ट्रिक्ट ये रिपीट में आ जाएगा कहीं ना कुछ पूछ लेगा। सारामती पीक नागालैंड। ठीक है, डाम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है, याद रखना। और गुमती कहाँ पे है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट्स नॉट इन सिक्किम, इट्स इन त्रिपुरा, याद रखना अब। ठीक है, डाम्पा इज फाइन, मिजोरम में है।
लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मिजोरम का डाम्पा टाइगर रिजर्व। यू हैव टू, एंड डाम्पा हमने करा भी था, हमने तीनों ही करे हैं आई थिंक। डाम्पा हमने किया हुआ है क्योंकि क्या बोलते हैं, डाम्पा लार्जेस्ट तो है ही है यहाँ पे। हुलुक गिबन, गिबन कर रहे थे ना हम, हुलुक गिबन भी पाया जाता है, जो कि अकेली जगह है। दिस इज द ओनली प्लेस वेयर हुलक गिबन्स आर फाउंड आई थिंक, इफ आई रिमेम्बर, इफ आई एम राइट। तो मिजोरम में ही है वो डाम्पा टाइगर रिजर्व में, ठीक है, याद रखना। और 2018 के सेंसस में एक फाइंडिंग और हुई थी कि टाइगर तो मिला ही नहीं वहाँ, और उसका नाम टाइगर रिजर्व है। पर एक टाइगर स्पॉटेड हुआ है रिसेंट में, 23 के अराउंड, 2023 2022 में, ठीक है। अनदर क्वेश्चन, गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लो, त्रिपुरा में है। एशियन एलिफेंट, सांबर, वाटर बफेलो, डियर, फायर लीव्स मंकी, सीरो, वाइल्ड गोट एंड फ्यू माइग्रेटरी बर्ड्स पाई जाती है वहाँ पे। reptiles have also been cited in the century. The most important strategy for the conservation of biodiversity together with the traditional human life is the establishment of biosphere. The most important strategy for the conservation of biodiversity together with the traditional human life, by traditional human life plus biodiversity, ये किसमें पॉसिबल है, याद रखना हमेशा बायोस्फीयर रिजर्व में, वहां पे अलाउ कर देते हैं कि वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं वो साथ में मिलके रहे उस जगह पे, ठीक है। गॉट इट। देखो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व इज इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटीज एंड ऑल इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर्स इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है। इस तरीके से 3 एरियाज होते हैं, ये बीच वाला कोर एरिया है, ये आपका क्या है, बफर जोन है ये, और ये क्या है, ट्रांजिशन जोन। कोर एरिया में कुछ भी अलाउड नहीं होगा, एकदम पैक्ड होगा। बफर एरिया में पैकिंग होगी और अनपैकिंग मिक्स होगा थोड़ा सा, और ये ट्रांजिशन जोन है, बाहर के एरिया से अंदर के जंगल के एरिया के लिए जाने के लिए, ठीक है, ऐसे याद रखना। देखो 3 एरियाज, कोर एरिया में क्या है, स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड जोन दैट कंट्रीब्यूट्स टू द कंजर्वेशन ऑफ लैंडस्केप, इकोसिस्टम, स्पीशीज एंड जेनेटिक वेरिएशन। बफर जोन, it surrounds or adjoins the core areas and is used for activities compatible with sound ecological practices that can reinforce scientific research, monitoring, training and education, ठीक है। And transition zone, the area where communities foster social, culturally and ecologically सस्टेनेबल इकोनॉमिक एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, यही वाली है ये क्या, ट्राइबल्स वाला एरिया जो हो गया। ट्राइबल्स को अलाउ कर देते हैं एक्चुअली, वहाँ के लोकल होते हैं इसलिए, काफ़ी सालों से रहे हैं उन जगहों पे, तो वो कंजर्व करके रखते हैं, ऐसा नहीं कि वो खराब कर रहे हैं। ठीक है, 3 मेन फंक्शंस हैं, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज सोशो कल्चरली एंड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल, आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना होगा, सोशो कल्चरल प्लस इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गॉट इट, याद रखना। लॉजिस्टिक सपोर्ट में क्या है, अंडरपिनिंग डेवलपमेंट थ्रू रिसर्च, मॉनिटरिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। नेशनल पार्क का देखो क्या होता है, इट इज अ प्रोटेक्टेड एरिया कॉन्स्टिट्यूट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉर इट्स एनवायरमेंट। नेशनल पार्क्स आर गिवन हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, याद रखना, सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इज इन नेशनल पार्क्स। अनलाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नो ह्यूमन इंटरफेरेंस इन एनी फॉर्म ऑफ हार्वेस्ट। अच्छा देखो, डबल चीज है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़ा बहुत अलाउड है इंटरफेरेंस, बट ह्यूमन इंटरफेरेंस इन एनी फॉर्म is not allowed, got it। timber collection minus forest produce private ownership rights is not allowed, ठीक है। नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखो, इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सर्टेन राइट्स ऑफ पीपल लिविंग इनसाइड आर परमिटेड एज लॉन्ग दे डोंट हार्म द वाइल्ड लाइफ। Such activities include harvesting of timber, collecting minor forest produce, livestock grazing, ownership of private land, ठीक है, यहाँ अलाउड है, नेशनल पार्क में अलाउड नहीं है सिर्फ, ठीक है। वाइल्ड लाइफ और बोटेनिकल सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व सब में रहता है अलाउड, गॉट इट। बट
कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल लाइफ फॉर्म की इकोनॉमी क्रिएट करके रखना, वो बायोस्फीयर रिजर्व का गोल है। गॉट इट? अभी हमने देखा था ना यहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, यहाँ का इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल यानी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखो वहाँ की, और वहाँ के कल्चर को बनाओ, तो ये हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सिंपल, वही क्वेश्चन में पूछा था, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ, वहाँ का सोशो कल्चरल डेवलपमेंट करके रखो। ये दोनों चीजें मैच कर रही थी किससे? बायोस्फीयर रिजर्व से। दिस इज वन ऑफ द थ्री फंक्शंस ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व। गॉट इट? बस हमको ये चीजें पता होनी चाहिए, हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब वी आई थिंक वी हैव डन ऑल दीज थ्री फोर थिंग्स, तो हो जाएगा। इनके पीछे लॉस कौन से लग रहे हैं वो विल लुक इनटू इट इफ इट इज आस्क्ड, if it is not we'll still look into them। consider the following pairs, वेटलैंड दे रखा है और कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स दे रखा है। देखिए ये आप मत करके जाइए, कोई फायदा नहीं है, याद ही नहीं होगा, ठीक है। केला देवगाना नेशनल पार्क आप देख लो, चंबल है ही नहीं, चंबल तो एमपी के अंदर है, आप इसको राजस्थान में डाल रहे हो, ये भरतपुर का एरिया है। ऐसे अगर सोचोगे तो टू तो नहीं होगा, टू जहां नहीं है हटा दो, या तो वन ओनली एंड वन एंड थ्री ओनली, बट वन एंड थ्री जस्ट बी नहीं है, ये सी है सीधे इसके नीचे, ठीक है। कोलेरू लेक देखो, कोलेरू लेक आई थिंक 2023 में फिर से आया था कोलेरू लेक पे, या 24 में, विल लुक इनटू इट। मूसी एंड कृष्णा दे रखा है, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि नहीं होगा। हरिक्के वेटलैंड्स ब्यास और सतलुज में है, सारी दुनिया जानती है ये। कोलेरू लेक देखो कहाँ है, गोदावरी और कृष्णा के रिवर डेल्टास पे है, ठीक है। थ्री भी नहीं होगा, मूसी एंड कृष्णा नहीं है, तो थ्री नहीं हुआ तो वन ओनली, सिंपल। हरिके वेटलैंड देख लो, ब्यास सतलज रिवर्स जस्ट साउथ ऑफ हरिके विलेज, ठीक है। हरिके विलेज का नाम है, ब्यास और सतलज के क्या नॉर्थ में रहता है, हरिके विलेज के साउथ में ब्यास और सतलज है, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब, ठीक है। कुछ नहीं है हरिके वेटलैंड, ये दोआब है, ब्यास और सतलज के बीच का जो दोआब वाला रीजन है ना, वही है ये, इसी को हरिके बोलते हैं। आपने जब बेसिक क्लासेस करी होंगी ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी की स्पेसिफिकली, तो उन्होंने पंज नदियों के पंजनाद, मतलब कि 5 रिवर्स का नेम बताया होगा पंजाब की, ठीक है। उनके बीच में दोआब्स बताए होंगे कि इस रिवर के बीच में ये वाला दोआब, इस रिवर के बीच में ये वाला दोआब, ठीक है। तो उनमें से हरिके वाला ये है, ऐसी और भी दोआब्स हैं, तो इसलिए ये हरिके वाला पता होना चाहिए था। गॉट इट? अनदर क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इको सेंसिटिव जोन्स, इको सेंसिटिव जोन आ गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट? पहले देख लो इको सेंसिटिव जोन होते क्या है। याद रखना है इको सेंसिटिव जोन थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं, फ्रजाइल एरियाज, इट इज गिवन ओवर हियर, जिनके 10 किलोमीटर्स के एरिया में प्रोटेक्टेड एरियाज रहेंगे, ठीक है। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इन प्लेसेस ऑफ सेंसिटिव कॉरिडोर्स, इवन एरिया बियॉन्ड 10 किलोमीटर विच कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द इको सेंसिटिव जोन। वैसे 10 किलोमीटर्स दे रखा है, बट 10 किलोमीटर से ज्यादा भी हो सकता है। गॉट इट? ESGs are notified by MOEFCC, Government of India under Environmental Protection Act 1986, ठीक है। EPA 1986 के अंतर्गत आता है। आप जब भी रिवीजन करो, आप इसको पढ़ना जरूर, ये फिर से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, याद रहना चाहिए, ठीक है। कई बार ये डायरेक्टली उठा के पूछ लेता है, ईयर ऑफ चेंज ईयर कर देगा और फिर दिक्कत हो जाएगी, तो याद रखना है। द बेसिक एम क्या है इनका? टू रेगुलेट सर्टेन एक्टिविटीज अराउंड नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सो एज टू मिनिमाइज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सच एक्टिविटीज, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी हो रही है आसपास में वाइल्ड नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एरिया के थोड़ा सा बाहर, और उसकी वजह से इशू आ रहा है क्या बोलते हैं फॉरेस्ट में, तो वो वाला प्रॉब्लम है ना, इसलिए
ओके, गॉट इट। रेगुलेटेड एक्टिविटीज क्या है? ट्रीज का गिरना, होटल्स का बनना, कमर्शियल यूज नेचुरल वाटर का, ड्रास्टिक चेंज ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम। परमिटेड एक्टिविटीज क्या है? ongoing agricultural or horticultural practices, rainwater harvesting, organic farming, use of renewable energy sources, obtain of green technology for all activities। ठीक है। और प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज क्या है? कमर्शियल माइनिंग नहीं कर सकते आप इन जगहों पे, इंडस्ट्रियल कॉजिंग नहीं कर सकते, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट नहीं बना सकते हो, ठीक है, प्रोहिबिटेड है इको सेंसिटिव जोन्स में। अब देखो कितने आराम से तुम सॉल्व करोगे इसे। वैसे भी हो जाता, अगर नहीं पता है तो भी हो जाएगा, बट मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हें थोड़ी नॉलेज मिल जाए अच्छी। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन, मैंने बताया था कि डेट्स वेट्स कई बार गलत आ जाती हैं, ठीक है। इतना ही याद रखो, तो 1972 दे रखा है WPA, बट अब आपको पता है WPA 1986 में ये इको सेंसिटिव जोन्स को अलाउ किया गया, तो आप याद रखो इसे, क्या जा रहा है। बहुत ज्यादा तो याद करने के लिए बोल नहीं रहा, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस आ जा रहे हैं जिनमें यूपीएससी डायरेक्टली डेट सही डाल दे रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसको याद रखो। वैसे डेट वेट कहीं दिखती है तो जनरली गलत होता है, एंटिल एंडलेस थर्ड या उसमें 3-4 स्टेटमेंट ना हो जो उसको सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, ये बात याद रखना। सेकंड ऑप्शन में देखो, द पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन इज टू प्रोहिबिट ऑल काइंड, देखो ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन दीज जोन्स एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। मतलब तुम एग्रीकल्चर अलाउ कर रहे हो, बाकी सब ह्यूमन एक्टिविटी बंद है, तो ये क्या एग्रीकल्चर खुद ही ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है क्या? दूसरी चीज ये है कि चलो ठीक है तुमने इसे अलाउ करा, तो रिसर्च नहीं हो सकती क्या? एजुकेशनल पर्पस के लिए या रिक्रिएशनल पर्पस के लिए कुछ कुछ लाया नहीं जा सकता वहां पर? वोकेशनल एक्टिविटी नहीं की जा सकती अगर एग्रीकल्चर अलाउ हो रहा है तो? ये सोचने वाली बात है ना। तो डायरेक्टली ये सेकंड तो होगा ही नहीं, वो प्रोहिबिट कर रहा है ऑल एक्टिविटीज को, और एग्रीकल्चर अलाउ कर रहा है, तो एग्रीकल्चर अगर अलाउ हो रहा है तो और भी चीजें अलाउ हो रही हैं, और हमने तो नॉलेज ले ली, नीचे दे रखा है प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज, प्रोहिबिटेड कौन सी है, रेगुलेटेड कौन सी है, परमिटेड कौन सी है। गॉट इट। आंसर विल बी डी, नाइदर वन नॉट टू। आई होप यू गाइज आर गेटिंग इट टू हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन विद क्लैरिटी। मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ, साथ में ये चीजें बता रहा हूँ, साथ में आपको लॉजिक भी दे रहा हूँ कि भाई अगर नहीं भी पता है तो तुम ऐसे सॉल्व कर सकते थे, बट अब मैंने तुम्हें ऐसे नॉलेज दे दी तो नॉलेज से करो, बट ये भी तो देखो कि यूपीएससी दिमाग क्या, साइकी क्या डलवा रहा है उसके अंदर, क्या आपके ब्रेन से क्या खेलना चाह रहा है वो। सिंपल चीजों पे खेल रहा है वो। नहीं भी आता होगा ना, थोड़ा सा भी लॉजिकल गेसिंग होगी तो सही कर दोगे इस आंसर को। यही तरीका है, 2014 में आया है, 2014 में ये क्वेश्चन। आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज यूनिक बीइंग अ स्वैम्प विथ फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट्स अ रिच बायोडाइवर्सिटी। स्वैम्प बोल रखा है, स्वैम्प। ठीक है, और फ्लोटिंग वेजिटेशन है। याद है उस स्वैम्प वाले एरिया में फ्लोटिंग में लोटसेस उग रहे हैं, और काफी फेमस फेमस वेजिटेशंस आर देयर। कौन सी ऐसी जगह है? केलादेव नेशनल, घाना नेशनल पार्क नहीं हो सकता, बर्ड सेंचुरी है। याद आया कुछ? सुल्तानपुर भी वर्ल्ड बर्ड सेंचुरी है, गुड़गांव में, याद आया, करवाया था। भितरकनिका नेशनल पार्क एक बार को हो सकता था, बट वहां पे भी बर्ड्स। केबल लामजाओ इज द आंसर, याद रखना। ठीक है, मणिपुर का केबल लामजाओ वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग सेंचुरी। अब याद आया, फ्लोटिंग वेजिटेशन, दुनिया की अकेली फ्लोटिंग सेंचुरी है ये, केबल लामजाओ। इसको याद रखना है अच्छे से, मणिपुर में है। ठीक है, संगाई डियर या ब्राउन एंटीलर डियर है वहां पर। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक लोकटक लेक इसी में ही है, लोकटक लेक पे भी क्वेश्चन आ जाता है, ये भी बताना था मुझे। याद रखना, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है। जो नेशनल पार्क बता रहा हूँ उतने याद रखो, सारे करने की जरूरत नहीं है, 100-113 के आसपास है, कितने याद रखोगे? बायोस्फीयर रिजर्व करो 18 याद, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें 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 इतना याद नहीं करना। मणिपुर, ठीक है, फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट इंडिया की लोकटक लेक, फ्लोटिंग वेजिटेशन दे ही रखा है, स्वाम्प दे ही रखा है। ठीक है, इतना याद रखो, याद रहेगा। और फुमदीस बोलते हैं फ्लोटिंग वेजिटेशन को, फुमदीस, फुमदीस, PHUMDIS। कल को आ गया फुमदीस इज
जनरली नोन टू बी फ्लोटिंग वेजिटेशन, कहाँ से मार्क करो, चलो क्या है, कहाँ पर पाया जाता है, तो याद रखना फुमडीज। गॉट इट। और इंडेंजर्ड ब्राउन एंटिलर डियर है शंघाई डियर, ठीक है, उनका होम है वो। एंड इट इज थ्रेटेन बाय द एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बैरेज वगैरह वगैरह, और ओनली नोटिफाइड प्रोटेक्टेड एरियाज इन मणिपुर, ठीक। गॉट इट। अनदर क्वेश्चन 2017 में क्वेश्चन आता है, फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग अज्यूम्स इंपॉर्टेंट इन बीइंग अ गुड लिंक बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। हम्म ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स में मैंने कुछ बताया था, के टी, कर्नाटक, केरला एंड केरला कर्नाटक तमिलनाडु का ट्राई जंक्शन, एलिफेंट वाला एरिया, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, साइलेंट वैली, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, और नागरहोल के नीचे साइलेंट वैली के थोड़ा सा ऊपर राइट साइड में, और यू नो सत्यमंगलम वाला रास्ता पूरा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बताया था। वही आंसर है इसका, बट नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व डायरेक्टली नहीं दे रखा है इसके अंदर, उसके अंदर कोई ना कोई नेशनल पार्क होगा या कोई ना कोई टाइगर रिजर्व होगा, और हमने याद किया था एलिफेंट्स और टाइगर्स बहुत पाए जाते हैं उधर, तो या तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व डायरेक्ट आ जाए तो एलिफेंट कॉरिडोर हो गया, या फिर टाइगर कहीं दिख जाए हमको, ऐसे याद रखना है। नहीं भी याद आ रहा तो टाइगर देखो, नहीं याद आ रहा तो एलिफेंट देखो, एलिफेंट देखोगे तो नीलगिरी डायरेक्ट दिखेगा, और टाइगर देखोगे तो टाइगर का रिजर्व दिखेगा कहीं ना कहीं, इस तरीके से याद रखना है, और ये ऐसे 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 क्वेश्चन सॉल्व होगा। सिर्फ ट्राई जंक्शन याद रखना था, केकेटी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, कई बार बता चुका हूं कि होम टू एलिफेंट्स, एशियाटिक एलिफेंट्स का कॉरिडोर, प्लस टाइगर्स का रिजर्व है वहां पे, बहुत हेविली डिफाइंड कॉरिडोर है टाइगर्स के लिए भी। क्या नाम है उसका? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और बताया था मैसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, काउंट करते हैं इसको आई थिंक ये लोग। गॉट इट। अब इसमें तो नहीं ये रहा, ये एरिया, आई थिंक दिस इज द एरिया। गॉट इट। साइलेंट देखो, साइलेंट वैली ये रहा, बांदीपुर ये रहा टाइगर रिजर्व, दिख गया, ये पूरा मैसूर वाला इलाका। मैसूर का राजा टीपू सुल्तान, उसके बच्चे किससे खेल रहे थे? खिलौने कौन से थे उनके पास? टाइगर के ही तो थे। टीपू को भी तो शेर बोला जाता था। गॉट इट। मैसूर के तो आई थिंक आइडेंटिटी काफी ज्यादा टाइगर से रिलेट करके किंगडम की, मैसूर किंगडम की थी, वोडियार राज पूरा मैसूर इलाके में था। ट्राई जंक्शन है केकेटी का वहां पर, ऐसे याद रखना, बार बार नहीं बताऊंगा, अच्छे से समझा रहा हूं, अभी करो ऐसे, पहले करवाया जाके लेक्चर देखो, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। राजीव गांधी नेशनल पार्क इसके ऊपर है, ये रहा, केरला में, और इसके कर्नाटक के सेक्शन पे, बॉर्डर। चलो अनदर क्वेश्चन, घड़ियाल्स कहाँ पाए जाते हैं नेचुरल हैबिटेट? सिंपल सा क्वेश्चन, इफ यू वांट टू सी घड़ियाल्स इन द नेचुरल हैबिटेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट? घड़ियाल्स, देखिए ये मुझे हमेशा से आता है, क्योंकि आई बिलोंग टू वेरी क्लोज प्लेस टू दिस चंबल एरिया, नॉट जस्ट टू चंबल बट विद इन द दिल्ली एनसीआर, आई लिव इन दिल्ली, विद इन द दिल्ली एनसीआर, इट इज इन नियर प्रॉक्सिमिटी, तो मुझे पता है कि भाई घड़ियाल पाए कहाँ जाते हैं, मुझे पहले से ही पता है, तो इसका आंसर चंबल रिवर मुझे इनवॉलेंट्री और डायरेक्टली पता था। गॉट इट। So we'll do it from that place. Chambal River is the answer B. These are also sometimes called घड़ियाल and a type of Asian crocodile, ये देख लो, ये घड़ियाल है। आई थिंक इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, अगर किसी को इस पर डीप स्टडी, डीप साइंटिफिक रिसर्च करनी हो तो प्लीज़ गो एंड विजिट चंबल, यू विल फाइंड घड़ियाल्स ओवर देयर, ठीक है।
बट इसको हमको याद कैसे करना है? हमें हमेशा याद रखना है कि घड़ियाल फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और चंबल इज अ रिवर। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो चंबल ही, आई थिंक दिस इज द, आई थिंक ओनली आउट ऑफ दिस थ्री इज फ्रेश वाटर, और घड़ियाल फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, तो उससे चंबल सॉल्व हो जाएगा। भितरकनिका के मैनग्रोव्स वाला इलाका है, तो ना तो ये सॉल्टी में होंगे, ना ये एकदम फ्रेश में होंगे, ये थोड़ा बीच के से ब्रैकिश वाटर में होंगे मैनग्रोव्स। गॉट इट? पुलिकत लेक है, ये आई डोंट नो वेदर इट इज दीपोर बिल तो आई थिंक फ्रेश वाटर लेक ही है असम में, ऐसा नहीं है, दिस इज ऑल्सो फ्रेश वाटर, तो क्वेश्चन वहां से तो नहीं होगा। घड़ियाल इज अ वेरी कॉमन क्रोकोड स्पीशीज ऑफ क्रोकोडाइल, सो आई थिंक इट इज फाइन, इतना पता होना चाहिए घड़ियाल का चंबल चंबल में पाया जाता है। ठीक है, मतलब ये तो ऐसा है कि पता ही होना चाहिए, हम लोगों को तो काफी अच्छे से पता है कि घड़ियाल चंबल में पाए जाते हैं। गॉट इट? अनदर क्वेश्चन, या फिर आप इसको स्किप कीजिए, और कोई ऑप्शन है नहीं। रिसेंटली देयर वाज अ प्रपोज्ड translocate some of the lions from natural habitat in Gujarat to which one of the following sites? हमेशा याद रखना है, ये थोड़ा सा ना फेमस है, कूनोपालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, गिर से कूनोपालपुर में भेजा गया था मध्य प्रदेश में। ठीक है, भले ही वो न्यूज में रहा हो बट स्टिल याद रखना कूनोपालपुर है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? पाखुई, याद रखना अरुणाचल प्रदेश। गॉट इट? कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है ये। गॉट इट? बरेली एंड कामिंग रिवर यहाँ पर है, कामिंग डिस्ट्रिक्ट है, उसी का नाम है कामिंग रिवर, उसी की रिवर है। ठीक है, बरेली एंड कामिंग वहां पर है ये। ठीक है, इन द वेस्ट एंड नॉर्थ एंड बाय पक्के रिवर इन ईस्ट। आगे के लिए लर्निंग अच्छी है, पाखु ही याद रखना, आ चुका है तो याद रखो। गॉट इट? इट इज नॉट नेसेसरी कि आ गया है तो याद ही है, बट कभी कभी बाउंसर पूछता है, यूपीएससी की आदत है, एक आध क्वेश्चन वो बाउंसर डालेगा, आप हर क्वेश्चन नहीं कर सकते, बट मोस्टली आपको करने हैं, एक दो आपको छोड़ने हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सारे ही करने हैं। 50% पे टॉप करोगे, 52% भी लाओगे तो कट ऑफ से बाहर हो जनरल में। गॉट इट? मतलब इन हो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व? अब इसने डायरेक्टली पूछ लिया, अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है, मतलब कौन कौन से आते हैं। ठीक है, देखो इसका एक अच्छी चीज सिखाता हूँ, ये जिसको नहीं आता था अगस्त मलाई कौन सा है, वो फिर भी इसे सॉल्व कर सकता है। कैसे? ये साइलेंट वैली दिख रहा है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था ना, उसके बाजू में था ना, तो अगस्त मलाई में कैसे होगा? भी तो नहीं हो सकता। सत्यमंगलम भी दिख गया था, देखो वो नीलगिरी के पास है, सत्यमंगलम तो टाइगर रिजर्व केकेटी पर है, तो बी तो नहीं हो सकता। ठीक है, बी हमने इसी तरीके से हटा दिया। श्रीशैलम टाइगर रिजर्व इधर तो था ही नहीं, ये हट गया। अब देखो लैंग्वेज के साथ तरीका सिखाता हूँ, ये अगस्त मला है, ठीक है, अगस्त मलाई है मला। ठीक है, एंड ये है पापीकोंडा, दिख रहा है, इन दोनों की लैंग्वेज अलग है। नहीं समझे? अगस्त मलाई एज अ नेम लुक लाइक्स काइंड ऑफ अ केरलाइट नेम। ठीक है, और पापी कोंडा, एनाकोंडा, इस तरीके के नेम्स कहाँ के होते हैं, देखो अलग मिलेगा, अगर दे रखा होगा तो अलग। देखो पापी कोंडा आंध्र प्रदेश, तेलुगु काइंड ऑफ अ नेम है, ये मलयाली नेम है, अगस्त्य मलाई इज अ मलयाली काइंड ऑफ अ नेम एंड पापी कोंडा इज अ तेलुगु नेम। अगर थोड़ा बहुत भी लैंग्वेज में डिफ्रेंसिएशन करना आता है तो आप वहां से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आपको ना पता होगा अगस्त मलाई, मुझे नहीं लगता कि आप
भाई मतलब अगर इफ यू वांट, अगर आपको सारे बायोस्फीयर 18 बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर सारे सारे नेशनल पार्क याद करने, सारे सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद करके जाना है, और 10 साल में कोई एक क्वेश्चन आ रहा है उसको सॉल्व करके आपको 30 मार्क खान बनना है, तो आप पूरे कर जाओ मेरी तरफ से। बट आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनना है, या फिर नॉलेज ऑफ हैविंग ऑल द ट्रेड्स ऑल द सब्जेक्ट्स एवरेज लेकर के चलोगे, तो आपका हर साल एक पेपर प्रीलिम्स निकल जाएगा। इस चक्कर में पढ़ोगे ना कि ये अगस्त मलाई का पूरा पता होना चाहिए था पहले से, फंस जाओगे, नहीं कर पाओगे। तो आपको लॉजिक्स लगाने हैं इसमें, ट्रिक्स लगानी है, आपको नेम्स देखने हैं भाई कि ये मलयाली नेम है कि तेलुगु नेम है कि कौन सा नेम है। इस तरीके से सॉल्व करोगे हो जाएगा, और एक आध ऑप्शन तो ऐसे ही हट जाते हैं। ठीक है, देख लो। साइलेंट वैली नेशनल पार्क नहीं हो सकता ये वाला, पता ही है, नीलगिरी कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, नागार्जुन सागर शीर्षासलम टाइगर रिजर्व, ये आंध्र प्रदेश में है। नहीं ये नहीं, सॉरी, पापीकुंडा। शीर्षासलम इज इन आई थिंक, देखते हैं कहाँ है शीर्षासलम। दे ही नहीं रखना आज गुरु, ये रहा। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है शीर्षासलम, नागार्जुन सागर, आंध्र प्रदेश आ गया, तेलंगाना, 5 डिस्ट्रिक्ट्स। इसे याद रखो बस, नागार्जुन सागर, शीर्षासलम, आंध्र प्रदेश, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का, वैसे ही पता होना चाहिए। आई गेस्ड इट राइट, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश। एक आध याद होगा ना, आंध्र प्रदेश तो वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, और अगस्त्यमला इज अ नेम, केरलाइट नेम। तो आपके 3 ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए, ये आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश, और ये वाला आपको पता ही है केकेटी ट्रांजिशन, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो अगस्तमला बायोस्फीयर रिजर्व तो अलग है, तो ए बचा, ए ऑप्शन। तो याद रखना अगस्तमला केरला में है। नई नैयर, देखो नैयर लिखा हुआ आ गया, नैयर। यूपीएससी हिंट देगा ही देगा। नैयर्स आर फाउंड इन केरला ओनली, यू नो दैट, नायर्स ऑफ केरला। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल वालों को बहुत अच्छे से पता है मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, पिप्परा, चिदुमई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कलक्कड़, मंधनथुरई टाइगर रिजर्व। गॉट इट, ए इज द आंसर। यहां से हो जाता था डायरेक्ट, केरला का नेम सिंपल मैच कर रहा है, तो नेमिंग से कर सकते हो। इस तरीके से सॉल्व करो, इजीली होगा। याद करके इनको याद नहीं कर पाओगे, कितनी कितनी भी कोशिश कर लेना, बैठ जाओ याद करने, परेशान होगे, टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, इनमें ऐसे ही करो, जो याद करने बोला उतना याद कर लो पहले, सारे हो जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन। अब कावेरी बेसिन किस तरफ है, याद करो। आ गया ये, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, केकेटी और पौंडीचेरी। आ गया, तो हमें कावेरी बेसिन पता चल गया भाई, तमिलनाडु का एरिया है, थोड़ा सा केरला का एरिया है, और थोड़ा सा कर्नाटक का एरिया है। बस इतना एरिया है, वो ट्राई जंक्शन केकेटी वाला, वापस से वहीं पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वाला पूरा एरिया। तो आंध्रा का तो कोई जगह नहीं होगी। ठीक है, और आंध्रा का अभी हमने क्या नाम रखा था, देखो आंध्रा से हमने क्या देखा था, सॉल्व होंगे अब, देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं दिखाता हूँ। हमने देखा था ये पापीकुंडा, आंध्रा से था, आंध्र प्रदेश, याद आया किसी को? ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व आंध्रा, पापीकोंडा एनाकोंडा आंध्रा, याद रखना। ठीक है, तो दिखा हमको, देखो यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया से लोकेटेड इन कावेरी बेसिन। कावेरी बेसिन तो केकेटी के ट्राई जंक्शन वाला एरिया है पूरा। ठीक है, जो मैंने केकेटी करवाया, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, बस उतना याद रखो, और पौंडीचेरी का एरिया, पौंडीचेरी का थोड़ा सा एरिया। गॉट इट, तो आंध्रा पे तो नहीं जाएगा और तेलंगाना पे नहीं जाएगा, तो आंध्रा में जो जो है उन्हें हटा दो। आंध्रा में पापीकोंडा है, सबसे पहले हटाओ इसे, टू हटा दो, हटा दिया टू, इसमें भी हटा दिया टू। अब देखो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, ट्राई जंक्शन के आसपास का पूरा एरिया, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का देखा था 2-3 साल पहले वाला, दिख रहा था, वहीं से उठा के पूछा है। तो 3 तो होगा ही होगा। ठीक है, 3 हुआ तो मतलब क्या है,
बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, मतलब तो बी सी बचेंगे, 3 और 4 तो है ही। ठीक है, नागरहोल याद करो, नागरहोल कहाँ था, कितनी बार कराया नागरहोल, थोड़ा सा ही ऊपर था, याद आया। मैसूर में आता है, मैसूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक, टाइगर रिजर्व नागरहोल, जो राजीव गांधी के आजू बाजू वाला। गॉट इट, तो वन तो होना ही होना था, हम कर चुके हैं इनको, कितनी बार देख चुके हैं क्रिकेट के आसपास में। सिंपली सॉल्व हो जाएगा, 1 3 and 4 इज द आंसर। स्टिल 50-50 पर तो थे ही तुम, यहाँ तक तो पहुंचा ही दिया था तुमको। इतना कौन याद करके जाएगा, कोई नहीं याद कर पाता भाई। हमको बस यही चीज, यही नॉलेज चाहिए, प्रायर नॉलेज थोड़ी सी, और चीजें सॉल्व हो जाती हैं। इसी तरीके से करते रहोगे, चीजें हो जाएंगी। ठीक है, वयनाड देख लो, मैसूर नीलगिरी देखो, ये एरिया आ गया। गॉट इट, मधुमलई इधर ही आ गया। ये रहा नागरहोल, मैसूर डिस्ट्रिक्ट, बांदीपुर, मधुमलई, वयनाड लाइलैंड सेंचुरी एडजेसेंट टू एनएनपी। ठीक है, ये बांदीपुर है, ये वयनाड है। ठीक है, ओके, लेट्स हेड ऑन टुवर्ड्स अनदर वन। मुझे, मैं बहुत टाइम लेकर के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे करोगे तो चीजें हो जाएंगी, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी। अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। अब भी थोड़ी देर पहले देखा था, लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर सिदिसा सलम आ गया क्वेश्चन 2020 में, सेम आंसर ये रहा, सिंपल, अभी बताया था। गॉट इट, ऐसे करना है। कहाँ पर था ये, करा था हमने, आंध्रा में था आई थिंक, चेक करना। कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट, रक्षम, गुंटूर, नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट, मुगभागनगर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। चलो आ जाओ अगले पे। विद रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क, इंडियाज डेजर्ट बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट। इट इज, इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स। देखते हैं, देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, ये तो नहीं हो सकता टू, थोड़ा बहुत तो ह्यूमन हैबिटेशन होगा ना, बट नेशनल पार्क में तो नहीं होता ह्यूमन हैबिटेशन, ऐसा ही हमने देखा था। बट एजुकेशन पर्पस, रिसर्च पर्पस, एक आध तो होगा ना कोई, या फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, कोई ना कोई तो होगा ना वहाँ, एक एक दो, यू नो। बिल्कुल नो ह्यूमन बोल देना, दिस इज समथिंग एब्सर्ड, यू नो। इट इज वन ऑफ द, तो टू हटाना है हमको, टू हटाया, टू हटाया, टू, आंसर ही आ गया सी। अब बताओ इसमें मैं क्या करूं। इट इज वन ऑफ द नेशनल हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, दिस वाज वेरी मच करेक्ट। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंडिया डेजर्ट नेशनल पार्क में पाया जाता है, और वी हैव डन दिस क्वेश्चन। गॉट इट, पर अब याद रखना 2 डिस्ट्रिक्ट्स में भी स्प्रेड हो रखा है। ठीक है, और देखो, लोकेशन ऑफ डेजर्ट नेशनल पार्क इज आस्क्ड इन मेंस इन 2 मार्क्स क्वेश्चंस ट्वाइस। वेयर इज द डेजर्ट नेशनल पार्क सिचुएटेड इन इंडिया, व्हाई हैज इट बीन क्रिएटेड, 1988 में आया था, और राइट ऑन डेजर्ट नेशनल पार्क इन अबाउट 20 वर्ड्स, 2009 में आया था GS3 में, 2 मार्कों में। ठीक है, जैसलमेर और बाड़मेर में है। ठीक है, so let's do another question. Which of the following are mostly likely places to find the musk deer in its natural habitat? देखो musk deer कैसा होता है, ये रहा musk, ठंडे इलाके में पाया जाएगा। गॉट इट, गंगोत्री नेशनल पार्क ठंडा है, यस। जहाँ पे ओरिजिन है, किसका ओरिजिन है, गंगा माता की कौन सी वो है मेन ट्रिब्यूटरीज में जो आती हैं, जो ओरिजिन वाली आती हैं, भागीरथी, भागीरथी, जब भागीरथी अलकनंदा से मिलती हैं, कौन से प्रयाग है वो, बताना मुझे, देव प्रयाग था या कौन सा था, वहां पे मिलती है अलकनंदा से, तो गंगा का ओरिजिन होता है, गंगा माता का। गॉट इट,
एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी अबव है, हायर राइज पर है, ये दोनों तो हो जाएंगे। किशनपुर और मानस नीचे हैं, पॉसिबिलिटी कम है, 1 और 2 होना ही होना चाहिए। अच्छा, दो ही दो ऑप्शन दे रखे हैं लोग, 1 और 2 डायरेक्ट सॉल्व। गॉट इट। काफी हाइटेड एरिया पर है, जो जितना ज्यादा हाई राइज होगा वहां पे मस्क डियर पाया जाएगा, अल्पाइन श्रब हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी लोकेशन पता होनी चाहिए थी। गंगोत्री तो नेशनल पार्क में बताई दिया, उत्तराखंड, वही गंगोत्री ग्लेशियर, गौमुख चाहे गंगोत्री टेम्पल जो है उस जगह पे। एंड एस्कॉट कहाँ पर है? एस्कॉट भी उत्तराखंड में ही है, मस्ट डियर सेंचुरी यहाँ पे फेमस। ठीक है, किशनपुर में तो नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में बर्फ नहीं पड़ती ना। गॉट इट। चलो अनदर क्वेश्चन। Okay. Which one of the following protected areas is well known for the conservation of subspecies of Indian swamp deer, Barasinga, that thrives well in hard ground and exclusively graminevorous? बताओ। Which of the following protected areas is well known for the conservation of subspecies of Indian swamp deer, Barasinga, that thrives well in hard ground and is exclusively graminevorous? Hard ground देखो, उसने सबसे पहले बोला है कि हार्ड ग्राउंड में पाई जाती है, ये हमें मिल गया की, यहाँ से हमें हार्ड ग्राउंड वाली देखनी है। मानस इज नॉट हार्ड ग्राउंडेड एज सच। ठीक है, टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है असम में, तो असम में ब्रह्मपुत्र है, एलुवियल सॉइल है, नॉट दैट मच हार्ड। हार्ड ग्राउंड क्या होगा? थोड़ा रॉकी एरिया, हल्का सा हार्ड रहे। कान्हा नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश, सोचो इस तरीके से, तो मध्य प्रदेश किस पे है? मध्य प्रदेश ये पूरा जो रीजन है अंदर का, हम इसको क्या बोलते हैं, कौन सा पेनिनसुला है ये? याद करो। ब्लैक सॉइल क्यों पाया जा रहा है? ब्लैक रॉक का फॉर्मेशन क्यों है? अब ये नहीं बताने वाला, इतना तो बहुत बेसिक है ये ज्योग्राफी का, इसलिए थोड़ा हार्ड है ना रिलेटिवली। मधुमलई ताल छपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से हार्ड है कि नहीं है? और प्रोटेक्टेड एरिया की बात की गई है, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया, सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोटेक्शन किसमें? नेशनल पार्क में, तो या तो मानस होता या कान्हा होता। कान्हा इज द आंसर, मानस है नहीं। ठीक है, दूसरी चीज, हिरन की बात की गई है, इसमें एक लॉजिक और दे रहा हूं, डियर की बात की गई है, जब डियर है तो टाइगर भी होगा या लायन भी होगा। और कान्हा नेशनल पार्क में क्या पाया जाता है? बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, स्लॉथ बियर, बारहसिंगा एंड ढोल। गॉट इट। इस तरीके से भी कर सकते हो। और थाल चापर का याद रखना, ब्लैक बक्स पाए जाते हैं। ठीक है, सो दैट वाज ऑल। तो हमें बस मैं एट द एंड ऑफ द डे आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट कि इस तरीके से ही यू हैव टू डू द क्वेश्चंस। हर चीज़ याद नहीं करनी है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा सोचना है, चीज़ें ऐसे ही हो जाएंगी। ठीक है, 2020 के बाद आई डोंट थिंक नेशनल पार्क्स पे क्वेश्चन आया है, पिछले 4 सालों में नहीं आया है। ठीक है, अगर आएगा तो इसी तरीके से आएगा। गॉट इट। तो इस तरीके से ही यू हैव टू सॉल्व द थिंग्स। और ये रही बात इस क्वेश्चन में ग्रैमिनीवोरस, ग्रैमिनीवोरस का मीनिंग क्या होता है? आई टेल यू। ग्रैमिनीवोरस का मतलब है जो ग्रास पे फीड करते हो एनिमल्स, उनको बोलते हैं ग्रैमिनीवोरस। एक्सक्लूसिवली ग्रैमिनीवोरस, थोड़ा ग्रासी लैंड हो, थोड़ा सा हार्ड लैंड हो, रॉकी सा एरिया हो थोड़ा वैसा। ठीक है, हार्ड ग्राउंड हो। गॉट इट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ।